रोहिंग्या को लेकर के चुनाव हम लोग बंगाल में करने नहीं देंगे। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत का ऊपर अधिकार है भारतीय का। भारत का ऊपर अधिकार है जो भारतीय मुसलमान है उसका। भारतीय मुसलमान का रोटी छीन रहे हैं। जाइए तमिलनाडु पे नॉन बीजेपी रूल स्टेट कितना बंगाली को हटाया गया, कारण वो बांग्लादेशी मुसलमान था। हम लोग जो देसी है उसका पास खड़े थे। जो उधर बैठकर सांप्रदायिकता का बातें कर रहे हैं, एक बार कोविड काल में देख लीजिए ये त्रिपुर में आरएसएस कैंप में सिर्फ हमारा कंस्टिट्यूएंसी से 1,500 मुसलमान 6 महीने तक था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर मजहब के नाम पर हमारा देश टूट गया था। जो लोग किसी समय खड़ा होकर बातें करते थे माइनॉरिटी हैज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वी वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आज वही लोग देश में घुस रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी वोट जिसके लिए चॉइस नहीं कंपल्शन है, उसी का सबसे बड़ा सक्सेसर बन गई है तृणमूल कांग्रेस। थैंक यू। आज जोर से उन्होंने किया, आज ये लोग वही कर रहे हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे। सब भारतीय को इकट्ठा होना चाहिए। थैंक यू। सब भारतीयों को, सब पॉलिटिकल पार्टी को। थैंक यू। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडियन वोटर लिस्ट फॉर इंडियंस ओनली। You have to accept it. I cannot and will not compromise with my country's internal security. That is the full and final. Thank you, sir. রাজনৈতিক মুনাফা তুলতে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের মদতে পরিকল্পিতভাবে জনবিন্যাস পরিবর্তনের চক্রান্ত রাজ্যসভায় তুলে ধরলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। সোমবার রাজ্যসভায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংস্কার নিয়ে আলোচনার সময় শ্রমিক বাবু যখন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে সোচ্চার, তখন তাকে লাগাতার বাধা দিয়ে গিয়েছেন তৃণমূল ও কংগ্রেস সাংসদরা। তবে তাতে দমানো যায়নি বাগ্মী শ্রমিক বাবুকে। সুনির্দিষ্ট শব্দ চয়নের মাধ্যমে রাজ্যের পরিস্থিতির একের পর এক নজির তুলে ধরেন তিনি। বলেন পশ্চিমবঙ্গে বাবা ভাড়া পাওয়া যায়। বলিষ্ঠ কণ্ঠে সংসদের উচ্চ কক্ষে তিনি ঘোষণা করেন এই ভারতের মাটি ভারতীয় হিন্দু ভারতীয় মুসলিমের। যারা এদেশ ছেড়ে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করেছিলেন তাদের জায়গা এই ভারতে হবে না। সোমবার শ্রমিক বাবু বলতে শুরু করতেই বাধা দিতে শুরু করেন তৃণমূল ও কংগ্রেস সাংসদরা। তার প্রতিটি বক্তব্যের বিরোধিতা করে বারবার বাধা দিতে থাকেন তাকে। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানকে শ্রমিক বাবুকে থামানোর জন্য অনুরোধ করতে থাকেন, কিন্তু বাগ্মী পণ্ডিত শ্রমিক বাবুকে কেই বা কবে থামাতে পেরেছেন। But in 1999, 28th January, in a meeting with Sheikh Hasina in Kolkata, Jyoti Basu said, infiltration is taking place and illegal settlers from across the border are a major headache of many Indian cities. West Bengal is bearing the burn of the infiltration and the state's economy is being adversely affected. The infiltrators would be pushed back after discussion with Dhaka. Now they are speaking against pushback. जो पार्टी, जिस पार्टी का नेता किसी दिन इन्फिल्ट्रेशन का खिलाफ बातें कर रहे थे, आज उसी पार्टी यहां आकर दूसरे बातें बोल रहे हैं। कारण क्या है? कारण कि एक टिपिकल माइंडसेट। वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हुआ, थोड़ा देर पहले सीपीआई का भी हमने बात सुना, सीपीआईएम का भी बात सुना। चाहे वो लोग आज डाइवोर्स हो गया उसका बीच में, तो पहले तो एक ही था ना सर। उसी का नेता मुजफ्फर अहमद, the founder member of the Communist Party, in his own autobiography he wrote, the Anandamath Bankim's novel was full of communal hatred from beginning to end. While the song Bande Mataram was unacceptable to a Muslim boy, a monotheist by upbringing. They're asking you to authenticate. Will you authenticate? Sir Indrajit Gupta, CPI leader, Union Minister of Home Affairs, 1996 to 97, date 6th May
1997 on the floor of the Lok Sabha. He gave an estimation of the total number of illegal Bangladeshi immigrants across the India is over 1 crore. His specific figures for key border Give him a states. minute to speak. Give him a minute to speak. I'll come to your point of order. West Bengal 54 lakhs, Assam 44 lakhs. Sri Shivprakash Jaiswal, MOS Home Affairs under UPA government, date July 2004, admitted in the parliament that there were 1.2 crore illegal immigrants in India. Manmohan Singh, 30th September 2005, India is opposed to all illegal immigration. 1 second, they've been asking a point of order. Let me just take that and I'll come to you and I'll allow No, you to sir, interrupt. 1 minute, sir. Just 1 second. Yeah. It is physically connected with for your electoral reforms. सर बाप किराए में मिलता है पश्चिम बंगाल में 15 साल का आदमी 10 बच्चा का जन्म दे दिया and I'll come to you. किसके ऊपर बात करेंगे I'm pausing your We time. are compromising with our national security. Point of order. I'm just taking a point of order. धर्मशाला नहीं है Just give me a minute. जिसका चाहे घुस जाएगा Last point of order. Last point of order. 1 second. তৃণমূলের বারবার বাধার পরেও নিজের বক্তব্য চালিয়ে যান শ্রমিক বাবু। Sir Manmohan Singh, 30th September Please, 2005, India is opposed to all illegal immigration into the country, be it from Bangladesh or elsewhere. The illegal immigration should not be encouraged. ये हमारा देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। Please. सर please. उसके बाद सर और एक घटना Please, no cross. 2005. Please, no cross. Sir, 2005, our honorable chief minister and then leader, Ms. Mamta Banerjee, threw the papers on the deputy speaker on Lok Sabha, Charanjit Singh Otwal, on 4th August 2005. कितना बार ये लोग ममता बनर्जी का नाम लिया रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए सारे whatever will not be there will not be there जो कागज छूट गया क्या कहना था उस समय please continue जब पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट बांग्लादेश में भरे हुए हैं कोई बांग्लादेशियों को लेकर सीपीआईएम को हम चुनाव करने नहीं देंगे she was in tears by that time and she threw all the papers to the speaker desk सारा देश ने तमाम देखा ये नजरिया क्या हुआ था ममता जी ने जो किया उस समय we did express our solidarity with Miss Mamta Banerjee जो करना चाहिए था आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जो लोग जो ममता जी बोल रहे हैं वही बात हम बोल रहे हैं और वही बोल रहे हैं हम 2005 in the year of 2005 on 4th August what Mamta Banerjee said वही बात आज हम दोहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से जो आप ये घुसपैठियों से मुक्त करो जो लोग किसी समय इस देश छोड़ के चले गए थे हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान सिलेट नीची दोनों वोटे आसाम ने वो लाठी छोटे वही लोग हिंदुस्तान में वापस आ रहे हैं और हमारा पार्टी मतलब हमारा वी आर इन सेम फ्रेटर्निटी हमारा ही पश्चिम बंगाल का एक नेता बोल रहे हैं आफ्टर ऑल हम लोग सभी एक जगह से आ रहे हैं सर इसी का पार्टी का एक नेता बोल रहे हैं एक भी बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट का बाहर नहीं रहना चाहिए इट इज वेरी मच इन द पब्लिक डोमेन वेरी मच इन द पब्लिक डोमेन address the chair Sir. Anything that is not authenticated will not go on record. I'm ruling it. Anything not authenticated will not go on record. Sir. Please continue. 64 लाख ऐसे वोटर का नाम पाए गए अब तक जिसका पिता और पुत्र का एज का डिफरेंस है सिर्फ 15 ईयर्स है सर इससे मुक्त होना चाहिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी SIR is going on. You have to accept it. 12 राज्य में आज SIR हो रहे हैं
और एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में हंगामा हो रहा है, क्यों हो रहा है? सर अब भाई बहन का शादी हो गया ये वोटर लिस्ट में, तो इसका तो सुधार होना चाहिए। क्यों इसका खिलाफ आवाज उठा रहे? सर सिर्फ लैंड जिहाद नहीं सर, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद कौन किसका वसा था? एक कॉइनेज किसने निकाला था? कोई बीजेपी नहीं, एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ने। आज जो लोग यहां बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं अभी तिवारी जी बहुत दिग्गज नेता वहां बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी का है, एक बार जाइए ना, मेहरबानी करें एक बार जाइए मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का घर पर चाय पीजिए। अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट क्या है? बोले यह तो चोरी नहीं, बंगाल में तो वोट का डकैती होता है। ये तो हम नहीं बोल रहे, हम कांग्रेसियों को बात कर रहे हैं। आप लोग वहां जाइए, एक बार जाकर देख के आइए। जयराम जी कहां चले गए? हम तो जयराम जी की ढूंढ रहे हैं, हाईली ग्रेटफुल टू हिम। जयराम जी 2009 साल में, इन द ईयर ऑफ 2009, जयराम जी ने इंडियन बोटेनिकल गार्डन का नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन रख दिया था। आभारी है पश्चिम बंगाल की जनता जयराम रमेश जी के पास। आज जयराम रमेश जी को बोलिए एक बार आप भी तो आइए देखने के लिए कि कैसे उसका भीतर घुसपैठिया घुस गया, मस्जिद बन गया, इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंच गया, पब्लिक डोमेन में वो तस्वीर है। पानी का कनेक्शन कौन दिया? हावड़ा कॉर्पोरेशन। कितने बार इंस्टीट्यूशन का लोग गए हैं थाने में, कोई एक्शन नहीं है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका साथ सीधा संबंध है, उस जगह रोहिंग्या बैठे हुआ है और उसका नाम वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए। किसी भी हालत से रोहिंग्या को मुक्त करना चाहिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़कर वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कोई आवाज उठाने का बात नहीं है। ये अब सैटेलाइट पिक्चर के लिए रामसर साइट, सुंदरबन एरिया, नामखाना, गोशाबा, पाथर प्रतिमा जा करके देख के आइए। वहां लोगों को बैठा कर ऐसे जमीन घेर रहे हैं, पूरा मैनग्रोव आज डिस्ट्रॉय हो गया वहां से। आज ये पर्यावरण का खिलाफ चुत छेड़ दिया। ये जो पार्टी आए हैं सब पश्चिम बंगाल की आम जनता नहीं, सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ नहीं, खुलेआम चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, खुलेआम पत्रकार के खिलाफ बोल रहे हैं, दोलाजियात बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बोला भारत की सारे जो मीडिया है वो पीक गया है। इन लोगों से लोकतंत्र की बात ही सीखना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स, उधर कम से कम वो जो सीपीआई का नेता, सीपीआई का भाई हमारा बैठे हुए हैं, उसका पार्टी का कार्यकर्ता को जिंदा जला दिया लास्ट चुनाव में। आज बात करके जॉन पीटर्स का बात कहां गया? पीटर्स भाई कहां गया? वो चले गए। हमारा कहना है पॉलिटिकल वायलेंस। You have 3.5 minutes. Please focus on election. एक समय था जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी वो पहले ये इंस्टेंट दे देते हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है। बिहार का चुनाव देख के आइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख के आइए, और आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? चुनाव पश्चिम बंगाल में चल रहा है 38। देखिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया चला रहे। कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में, क्या सुप्रीम कोर्ट बोल दिया सबको जाना। सर हरियाणा चुनाव का पहले, दिल्ली चुनाव का पहले कौन सा ऐसा ईयर था? बिहार में चुनाव का बाद कितना लोग कंप्लेन दर्ज किया? जो लोग वोट चोरी का बात करते हैं और जिसका साथ पार्टी में है, वो लोग वोट का ऊपर डाका डालते हैं, यही उसका स्थिति है। Sir, one of the senior member of the other house and then opposition leader, Mr. Adhir Ranjan Chaudhary was physically manhandled in his own constituency during the election. यही स्थिति है पश्चिम बंगाल का। वोट की नाम पर क्या तमाशा चल रहा है? अरे आपका तो एक पिता का नाम मिल गया सर, एक नहीं ऐसा हजारों केस है। 24 परगनास एक व्यक्ति जिसका 10 संतान मुर्शिदाबाद में है। सोचिए बाप रहते हैं, पिता रहते हैं आपका नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में, और 10 बेटा रहते हैं मुर्शिदाबाद में, और 5 लड़की वो मोहल्ले में रह रहे हैं। इसको तो सुधार होना चाहिए। अगर इसके ऊपर बातें करने से बोलेगा किसी को कोई जरूरत नहीं है।
कोई भी एसआईआर नहीं करने देंगे पश्चिम बंगाल में। खुद फॉर्म भर लिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर करना संभव नहीं है। बीजेपी दंगाचार है। क्या एसआईआर बीजेपी कर रहे हैं? और आदर है, उसका एक नेता है, बहुत उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। 6 बार का करीब करीब उन्होंने संसद बना, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी था, 6 बार पार्टी भी बदल चुके हैं, तो अभी है एक पार्टी में। उन्होंने उस दिन अच्छा बोला था, दादा को बाबू लेके ठीक किया था, लेकिन हुआ क्या? उसका कहना क्या था, इसमें हल्ला का क्या बात है? इट्स अ कॉमन फिनोमेनन। एसआईआर को होता है, इसको होने नहीं दीजिए। और दूसरा लोग कुछ अलग बात बोल रहे हैं। सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आप खुद संविधान की शपथ लेकर एक पद पर बैठे हुए आदमी कैसे एक संविधान की संस्था को ऊपर चैलेंज करते हैं? ये हमारा बात है। साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन इन ऑन, प्लीज साइलेंट डेमोग्राफिक एक पश्चिम बंगाल का चल रहा है। पश्चिम बंगाल का सारे सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गया और वो वोटर लिस्ट में घुस गया। अरे आप बॉर्डर और सर, झारखंड का साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है। झारखंड का साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है। आज से बंगाल नहीं, झारखंड और बिहार, सीमांचल और वनांचल का भी डेमोग्राफी बदल रहे हैं। मुर्शिदाबाद को सेंटर बनाकर लोगों को भेजा जा रहा है आज झारखंड में। आज अब 2 मिनट चाहिए सर, ओनली सर 2 मिनट टू कंक्लूड। सर, किसी भी हालत से हम लोग तो यही चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो देखना तो राज्य की विषय है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहे हैं और काम करते करते आप कोई बीएलओ का हस्बैंड को गोली मार देंगे। जो फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो इसको गोली मार देंगे। पीआर में धोखा खाकर कोई खुदकुशी कर लिया, आप उसका कारण एसआईआर बना देंगे। एसआईआर का नाम पर डेथ सर्टिफिकेट कभी सुना है आपने? जो भी मर रहे हैं अभी, चाहे वो सीकेडी में चला जाए, हार्ट अटैक में चला जाए, चाहे वो उसका कोई सेरिब्रल हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर अब बहुत दिन से कैंसर से पीड़ित है, मर जो गया तो डेथ सर्टिफिकेट पे डॉक्टर लिख देते एसआईआर। ऐसे चल सकते हैं? सर, ये हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। आज मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर और वनांचल और सीमांचल का स्थिति क्या हो गया? आज इस कहां गए वो? सर, अभी बाला साहेब ठाकरे सामना पढ़ लीजिए। जब वी कैन नॉट एंड विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन आवर कंट्री, ये बाला साहेब ठाकरे का कहना है। कांग्रेस का जितना नेता लोग वहां बैठे, उसका तो स्टेटमेंट हमने पढ़ दिया। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है, कांग्रेस का स्टेटमेंट है। को लेकर के चुनाव हम लोग बंगाल में करने नहीं देंगे। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत का ऊपर अधिकार है भारतीय का। भारत का ऊपर अधिकार है जो भारतीय मुसलमान है उसका। भारतीय मुसलमान का रोटी छीन रहे हैं। जाइए तमिलनाडु पे, नॉन बीजेपी रूल स्टेट, कितना बंगाली को हटाया गया, कारण वो बांग्लादेशी मुसलमान था। हम लोग जो देसी है उसका पास खड़े थे। जो उधर बैठकर सांप्रदायिकता का बातें कर रहे हैं, एक बार कोविड काल में देख लीजिए, ये त्रिपुर में आरएसएस कैंप पे सिर्फ हमारा कंस्टिट्यूएंसी से 1,500 मुसलमान 6 महीने तक था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर, मजहब के नाम पर हमारा देश टूट गया था। जो लोग किसी समय खड़ा होकर बातें करते थे, माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वी वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आज वही लोग देश में घुस रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी, वोट जिसके लिए चॉइस नहीं कंपल्शन है, उसी का सबसे बड़ा सक्सेसर बन गई है तृणमूल कांग्रेस। थैंक यू। आज जोर से उन्होंने किया, आज ये लोग वही कर रहे हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे। सब भारतीय को इकट्ठा होना चाहिए। थैंक यू। सब भारतीयों को, सब पॉलिटिकल पार्टी को। थैंक यू। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडियन वोटर लिस्ट फॉर इंडियंस ओनली। You have to accept it. I cannot and will not compromise with my country's internal security. That is the full and final. Thank you, sir. Thank you. শ্রমিক বাবু যখন পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তখন তাকে বারবার বাধা দিতে থাকেন তৃণমূলের 2 সাংসদ সাকেত গোখলে ও সুস্মিতা দেব, যারা গুজরাট ও অসমের বাসিন্দা।
সাংসদের বিভিন্ন রুল দেখিয়ে তাকে বারবার থামান তারা। এমনকি তার বক্তব্য সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ারও দাবি জানাতে থাকেন। প্রশ্ন উঠছে, অনুপ্রবেশ ও জনবিন্যাস নিয়ে কথা বললেই মুখ বন্ধ করার মরিয়া চেষ্টা করে কি শেষ রক্ষা করতে পারবে তৃণমূল? ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। अरुणाचल सरकार का संकल्प 5 प्रतिज्ञा, शिक्षा से सशक्त भविष्य, कृषि से समृद्धि का, प्रकृति का साथ विकास, हर घर तक ग्रीन एनर्जी, पर्यटन से नई पहचान। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम बनाएंगे ऐसा अरुणाचल सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध। हमारा वादा, विकास भी विरासत भी।